Hello students, welcome back. So today we are going to continue our chapter rotational dynamics from the subject physics of standard SYGC science, and today we are going to cover the major topic which is related to moment of inertia. Okay, so now what we have seen in the last lecture, okay, we have seen something related to the velocity at different points, okay, as well as the surface tension at different points. Okay, so basically we have seen the rotational motion based on or under action of gravity. Okay, so we have seen the two what I can say the types. First is nothing but under action of manual forces and under action of gravity. Okay, so when it is under action of gravity at all the points, what will be my speed as well as what will be my tension in the string. ओके, सो हमने ये देखा था कि हर एक पॉइंट पे मेरे पास स्पीड का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा था, अलग अलग आ रहा था. एट द सेम टाइम आई विल गेट जो टेंशन इन द वायर है वो भी मुझे अलग अलग मिल रहा था. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट मेरे पास चार डेरिवेशंस थे with help of different points. Okay, so that we have seen, but now today we are going to see something new. Okay, so it is very easy for the people, okay, to understand what is the exactly difference between the translational motion and rotational motion. और उसमें हम मेन पढ़ेंगे this particular term called as a moment of inertia. Okay, so पहले हमने जब ये देखा था ट्रांसलेशनल मोशन क्या, इसका मतलब एक लीनियर मोशन है, और रोटेशनल मोशन मतलब इट्स अ सर्कुलर मोशन. ओके, सो हमने ये भी देखा था ट्रांसलेशनल मोशन में मेरा जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है. इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन में मेरा एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होता. ओके, बिकॉज द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट मींस द वेक्टर नेवर बी अ zero. Okay, so whenever there is a continuous change in direction, even though मेरा वो particular car या particular object circular uniform circular motion में है, but still it is having some acceleration because the velocity changes its direction. Okay, then अगर मुझे उसको relate करना होगा जैसे linear motion to rotational motion, तो displacement मैं उसको x बोलता हूँ, यहाँ पे angular displacement उसको theta बोलता हूँ. राइट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, बस 360. मोर देन दैट इट कांट. ओके, बिकॉज अपने पास सर्कल में खाली 360 ही वो घूम सकते हैं. अगेन इट विल स्टार्ट विद जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इनफाइनाइट. ओके, देन वी हैव अ टाइम t. Here also the time factor is same. Then we have a velocity. Okay, here the velocity is not just a velocity. Here the velocity is converted into angular because ये क्या है, rotational. Angular मतलब गोल गोल. Okay, so therefore यहाँ पे उसको denote करते हैं ओमेगा से. Then we have a acceleration which is denoted by a, और यहाँ पे हमारे पास है acceleration which is denoted by alpha. Then we have a mass over here. In terms of linear motion is m. In case of rotational motion, mass को ही मैंने एक नया नाम दिया है in terms of rotational motion, जिसको मैं बोलूंगा moment of inertia. Okay, so moment of inertia का मतलब क्या है वो हम आज देखेंगे. As well as in terms of translational motion, I have a force, but in terms of torque, I have a tau equal to moment of inertia into acceleration. Okay, so ये दो तीन चीजें हैं which are very important. Okay, which we have to understand today. So now today what we have to see, moment of inertia as an analogous quantity for mass. Okay, so इसका मतलब क्या, let us consider the object to be consisting of n particles of mass which is m1 m2 let's say mn at respective perpendicular distance. Okay, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है. ओके, सो यूजुअली लीनियर मोशन में जो बॉडी का मास होता है, ठीक है, दैट हैज टू बी कंप्लीटली डिपेंड ऑन मेरा जो आउटपुट होता है. मतलब क्या, एक नॉर्मल मेरे पास अगर एक बॉक्स है, ओके, तो ये नॉर्मल बॉक्स का ऑब्वियसली क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा
और उसका मास मैं डिनोट करूंगा m से। ओके, बट यही चीज, सो इफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, इसका मास हमेशा m ही रहने वाला है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मास। ओके, बट व्हाट हैपेंस इफ आई हैव अ सर्कुलर मोशन। ओके, लेट्स से कि मेरा एक सर्कल है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये पर्टिकुलर सर्कल ये डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि लेट्स से आई हैव अ डोर। ओके, ये मेरा ऐसे दरवाजा है। ओके, और यहाँ पे क्या है, मेरा वो हिंजेस है, और ये मेरा डोर ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहा है। ओके, सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, कि अगर हैंडल हमेशा उसके एंड पे होता है, ओके, इट इज नॉट समथिंग ओवर हियर। व्हाई? द रीजंस आर देयर। आपके घर पे भी अगर आप ट्राई कर सकते हो, तो हैंडल से अगर आप कोई भी दरवाजे को पुश करोगे, सो यू विल गेट अ मैक्सिमम फोर्स टू बी अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी हाई। ओके, बट द मोमेंट आप उसके सेंटर में लगाओगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, बट डिस्प्लेसमेंट कम होगा अगर आपने सेम फोर्स रखा तो। जैसे जैसे आप टूवर्ड्स ये हिंजेस के पास आओगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपको अगर ये सेम डिस्प्लेसमेंट करना है, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना है, तो आपको सेम फोर्स के साथ इट इज नॉट पॉसिबल, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होगा। ओके, विथ हेल्प ऑफ फिंगर ऑल्सो आप इसके हैंडल से डोर को पुश कर सकते हो, बट वही जैसे आप उसके सेंटर में आ गए, सो विथ हेल्प ऑफ सेम फिंगर विथ सेम फोर्स यू कैनॉट पुश द डोर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर हैज टू बी समथिंग कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है जिसके वजह से क्या होता है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो क्या होता है, चेंज होता है। ओके, जैसे ही मैं उसको थोड़े हिंजेस के पास, मतलब हिंजेस मेरा क्या है, इन शॉर्ट मेरा एक ऐसा एक्सिस है जहां से ये मेरा पूरा डोर है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, सो ये जो यहाँ पे उन्होंने दिया है एक्सिस, वही एक्सिस एज ऑफ नाउ मेरा क्या कर रहा है, ये हिंज एक्ट कर रहा है। ओके, सो एट दिस हिंजेस जितना ज्यादा दूर मेरा मास होगा, उतना ही उसको घूमने के लिए आसानी होगी विथ मिनिमम फोर्स, बट जितना कम उसका डिस्टेंस होगा उतना उसको ज्यादा फोर्स लगेगा घूमने के लिए। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ डिस्टेंस। ओके, एक डिस्टेंस है जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ये मेरा डिस्प्लेसमेंट अच्छे से मैं इजीली कर सकता हूँ। बट जितना ये मेरा रेडियस, मतलब जितना ये मेरा डिस्टेंस कम होगा, उतना मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मतलब उतना मेरा जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पास में होगा। Okay, so in that case I need more force to push that same piece of door, correct? तो ये रेडियस, ओके, देखो नॉर्मल लीनियर में क्या होता है, आप यहां से पुश करो, आप यहां से पुश करो, आप यहां से पुश करो, देर इज नथिंग। ओके, हमेशा आपको एफ फोर्स ही लगेगा, और आप कहीं से भी पुश करो वो हमेशा लीनियर मोशन में ही जाने वाला है। अगर यहाँ से लगाएगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से लगाएगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से लगाओगे तो यहाँ पे जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज बी देयर, सो देर इज नॉट काइंड ऑफ लेंथ और समथिंग जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूँ, करेक्ट? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या करता है, इट्स प्लेइंग अ मेजर रोल, एंड बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस ओनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, एक्चुअली पिक्चर में आ जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो मास के कंपैरिजन में एनालॉगस क्वांटिटी, मतलब जैसे हम लीनियर मोशन में मास बोलते हैं, वैसे ही हम रोटेशनल मोशन में उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ओके, मतलब मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी हम कैसे दिखाएं, उसके लिए उन्होंने एक क्या दिया है, डेरिवेशन दिया है। ओके, वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये डेरिवेशन में क्या है, एक रिजिड बॉडी है, सो दिस इज द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या, एक ऐसी बॉडी जिसका कोई शेप नहीं है। ओके, देयर इज नो शेप टू इट, आर्बिट्ररी रिजिड बॉडी। और रिजिड का मतलब ये भी होता है कि उसका कभी शेप चेंज नहीं होगा। ओके, सो आर्बिट्ररी मतलब कौन सा भी शेप, और रिजिड मतलब जिसका शेप चेंज नहीं होगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। ओके, सो ऐसा एक मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया,
उसका मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला. सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, अभी ये सेंटर ऑफ मास से मैंने क्या किया, एक एक्सिस पास किया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस व्हाट आई कैन से द ऑब्जेक्ट. तो ये मेरा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, एंड सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऑब्जेक्ट को जहां पे मीट करेगा वो पॉइंट होगा मेरा सेंटर ऑफ मास पॉइंट. ओके, और ये सेंटर ऑफ मास से मैं क्या करूंगा, एज ऑफ नाउ आई विल टेक सम पॉइंट्स, सम मास पॉइंट्स, बिकॉज ये छोटे छोटे मास पॉइंट से ही क्या बन रहा है, ये मेरा पूरा रिजिड बॉडी बन रहा है. सो इसके लिए मैंने क्या किया, छोटे पॉइंट मासेस लिए. ओके, मतलब क्या, एक मास यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और ऐसे n नंबर ऑफ मासेस बने हैं मेरे, बनाया है ये रिजिड बॉडी को. ओके, so from my n number of masses this rigid body got made. Okay, so now what I have to do, first I have to find कि ये इनके सबके बीच का डिस्टेंस कितना है. जैसे m1 के बीच का डिस्टेंस है r1, m2 के बीच का डिस्टेंस है r2, mn के बीच का डिस्टेंस है rn. ओके, सो देयरफॉर ऑल पार्टिकल सर्कुलर वेलोसिटी अगर मैं उसको बोलूंगा, सो हर एक के लिए क्या होगा, सर्कुलर वेलोसिटी विल बी सेम, मतलब एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम, बिकॉज ये जो स्पीड से घूमेगा वही स्पीड से ये भी घूमेगा. बिकॉज सर्कुलर में क्या होता है, खाली एंगल हम चेक करते हैं, मतलब कितना एंगल उसने ट्रेवल किया डिवाइड बाय टाइम. सो एक टाइम में कितना एंगल वो चेक कर रहा है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होगा कि हर एक पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी उसका हमेशा क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज उसने जो एंगल कवर कर रहा है इन गिवन टाइम दैट विल बी सेम फॉर ऑल. बट देयर विल बी डिफरेंस इन द लीनियर वेलोसिटी. क्यों? बिकॉज लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v1 is equal to r1 into omega 1, where r is the changing or variable quantity. So for mn, r is more than r1 and r2. So for mn, the linear velocity is highest. For m1, linear velocity is medium. For m2, linear velocity is again medium. So the more you are close to this axis of rotation, your velocity also will be very less. Okay, so this has to be very clear. जितना आप रेडियस ज्यादा होगा उतना मेरा स्पीड जो होगा लीनियर वेलोसिटी. ओके, रिमेंबर लीनियर वेलोसिटी हैज टू बी वेरी हाई फॉर लॉन्गर डिस्टेंस. ठीक है, बट एंगुलर वेलोसिटी सबका क्या होगा, सेम होगा. So now what I will do, I will first check the translational kinetic energy. ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर वे में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. सो सिंपली मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. करेक्ट, सो हाफ एम वी वन स्क्वायर. ओके, सो पहले मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा फॉर फर्स्ट पार्टिकल विच इज m1. तो उसके लिए मैंने क्या किया, हाफ m1 v1 स्क्वायर. अभी v का मुझे तो वैल्यू पता है विच इज r1 एंड ओमेगा. सो मैंने यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. So this is the first equation for this first point mass for this kinetic energy. Okay, now second. Now let's move to the second. अभी इसमें क्या है देखो, simple. Rotational kinetic energy of a mass object is the sum of individual translational energies. Thus the rotational kinetic energy can be given as this. तो पहले मैंने क्या किया, just I found for m1. Similarly I can found it for m2 and last में मैंने क्या किया, mn के लिए फाइंड आउट किया. So therefore अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसे n नंबर ऑफ मासेस मेरे गिवन रिजिड बॉडी का पार्ट है, तो अगर मैं एक के लिए फाइंड कर रहा हूँ तो ऐसे n नंबर ऑफ के लिए भी फाइंड आउट कर सकता हूँ. Okay, so therefore the total kinetic energy will be given by this. Okay, so मुझे यहाँ से क्या मिला, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिला. अभी मैंने क्या किया, सिंपली इसमें से कॉमन चीजें निकाली. अभी इसमें से कॉमन चीजें कौन सी है, half which is 1/2. This is half is the common, as well as you can see the omega, the angular velocity is common for all. Okay, because वो हमेशा सबके लिए सेम होगा, whereas the m mass and the radius will be different or distance will be different. So therefore मैंने क्या किया, ओमेगा को बाहर निकाला and half को बाहर निकाला. Remaining term I have kept it as it is. Okay, so अगर मैं ये पर्टिकुलर इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक्स के बारे में समझने के लिए स्टार्ट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ, इसको मैं कुछ तो नाम दूंगा, लेट्स से आई. ओके, इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओके,
इसका मतलब क्या, समथिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक्स, मुझे क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन मिल रहा है विच इज समथिंग रिलेटेड टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं मेरे लीनियर वेलोसिटी से, सो लीनियर में क्या था, हाफ, यहाँ पे भी हाफ सेम है, यहाँ पे वी स्क्वायर मतलब लीनियर स्पीड का स्क्वायर है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड का स्क्वायर है, बट देर इज समथिंग चेंज्ड विद दिस। इसका मतलब अगर मेरा ये हाफ और ये मेरा लीनियर स्पीड है, और इन केस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक्स इट इज द एंगुलर स्पीड, तो ऑब्वियसली ये जो मेरा मास है दैट इज एग्जैक्टली एनालॉगस टू माय दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, so moment of inertia of each particle is given by in mass and its distance from its axis of rotation. Okay, so सारे ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं ज्वाइन करूं या मिलाऊं, तब मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे दिस इक्वेशन विल बी हाफ इंटू I into omega square. Okay, and therefore omega square is nothing but angular velocity and v is linear velocity, so both are analogous. Analogous का मतलब both are, ये काइनेटिक एनर्जी में हम इसको ओमेगा बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी में हम स्पीड को या वेलोसिटी को v बोलते हैं। ठीक है, सो बोथ आर रिलेटेड टू वेलोसिटीज ओनली, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास है और यहाँ पे आई है। तो अभी ये आई का मतलब क्या है, आई इज नथिंग बट माई एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So moment of inertia is nothing but mass into the distance from its axis of rotation. Okay, तो उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ पे सबका मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो तभी जो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो मुझे काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में मिलेगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो whereas they have given whereas I will be equal to the moment of inertia of each particle, जहाँ पे उसका r क्या है, अलग अलग है। ठीक है, therefore if mi square replaces the mass and the angular speed omega replaces the v, the rotational kinetic energy is given by this half I omega square, is analogous to my linear velocity, and therefore this mass in terms of rotational we called it as the moment of inertia. Thus I is defined to be the rotational inertia or moment of inertia of the object about the axis of rotation. Have you understood this? So जहाँ पे हम मास बोलते थे लीनियर में कि मेरे पास इतना मास है एंड ऑल, वहीं पे हम रोटेशनल में वो मास को रिप्लेस करके कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एंड मास इज इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू, मास इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इफ देयर आर मोर देन वन पॉइंट देन सबका समेशन आएगा। ओके, this will be the exact moment of inertia ka relation with rotational kinetic energy. Okay, so therefore I can say that the mass in terms of linear speed is analogous to moment of inertia in terms of rotational speed. Okay, understood everyone? Okay, let's move to the next. So based on this moment of inertia only, now we have to solve or we have to see many examples. So what are the examples? So first example is it's the moment of inertia of uniform ring. तो आपने रिंग देखा होगा, रिंग मतलब क्या कि एक सर्कुलर, मेरे पास एक स्ट्रेट वायर होगी, अगर मैं वो स्ट्रेट वायर को सर्कुलर मैनर में जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिंग मिलेगी। रिंग का मतलब क्या, रिंग का खाली ये जो पोर्शन होता है बस यही खाली सॉलिड का होता है, बाकी इंटरनली पूरा वो क्या होता है, खाली होता है। ओके, सो दिस वी कॉल्ड एज अ what I can say, the ring. Okay, so ring में usually हम उसका thickness and everything we are ignoring, so it's just a ring we are usually take. Okay, ring के center में, because ring का देखो यहाँ पे center of mass क्या होगा, ring का center. Okay, so student there are two concept, एक है geometrical center, दूसरा है center of mass. Okay, so in terms of sphere, in terms of circle, in terms of what I can say, the ring or disc, we know that this center of mass is coinciding with what I can say, geometrical center.
Okay, so here the center, geometrical center is also this, and the center of mass is also this. सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या कि ऐसा पॉइंट, देखो बचपन में हम करते थे, किसी बुक को हम हाथ में लेते थे एंड देयर हैज टू बी अ सेंटर पॉइंट जहां पे वो बुक पूरा स्टेबल होता था. ओके, सो दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास. बट अगर ये जरूरी नहीं हो कि अगर मैंने वो बुक को एक साइड में अगर पेन लगा दिया तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मास उसके एक साइड में बढ़ जाता है. सो आई हैव टू शिफ्ट माय पॉइंट समथिंग टुवर्ड्स दैट पेन. सो क्या होगा, टू इन ऑर्डर टू कीप दैट पर्टिकुलर बुक स्टेबल ऑन माय हैंड. तो वो केस में क्या हुआ, मेरा जो ऑलरेडी जो मैंने विदाउट पेन जो मेरा पॉइंट था दैट वाज एक्चुअली कोइंसाइडिंग विद माय सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ माय बुक. बिकॉज अगर मैं बुक पे से दो लाइन मारूं, दो डायगोनल ज्वाइन कर दूं तो मुझे सेंटर मिलेगा, वो होगा मेरा सेंटर ऑफ, आई कैन से. सो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ. देखो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो देखो यहाँ पे अगर मेरा ये ऐसा बुक है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसका सेंटर, विच इज नथिंग बट दिस. ओके, सो यहाँ पे कोई भी पेन नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे अपना फिंगर यूज करोगे तो यू विल बी एबल टू बैलेंस दिस. बट जैसे ही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पेन रख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मास रख दिया, तो क्या हो जाएगा, अचानक से दिस पोर्शन विल बिकम हैवी. तो आपको उंगली अभी यहाँ पे रखनी होगी. ओके, यू हैव टू कीप योर फिंगर लाइक दिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू बैलेंस. बट नाउ दिस वाज द ज्योमेट्रिकल सेंटर and this is the center of mass. Now you are understanding, correct? Now there is not necessary always the center of mass is coinciding with my center of geometry. Okay, always remember center of mass हमेशा वो पॉइंट होगा जहां पे सारे मासेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा. ओके, और यहाँ पे दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर. But when we talking about the sphere, when we're talking about the ring, when we're talking about the disk, at all the time the center of mass is same as that of my center of geometry. Okay, now let's move to this. It is a two-dimensional object of negligible thickness. As I told you, एक पतला सा वायर है. Okay, उसमें thickness ज्यादा नहीं है. If it is rotating about its own axis, its entire mass m is practically at a distance equal to its radius from the axis. Okay, तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग या एक्सिस के अराउंड अगर ये मूव कर रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसका जो एंटायर मास m है वो प्रैक्टिकली है एट ए डिस्टेंस about r from its axis. Okay, so the moment of inertia of a uniform ring of mass of radius can be easily given by this m into r square. Okay, because इसके पहले ही मैंने देखा था moment of inertia will be equal to mass into the distance from the axis of rotation. तो अगर ये रिंग है तो ऑब्वियसली इसका जो मास है वो क्या है, ये सारे पॉइंट्स है, मतलब ये पूरे रिंग पे है, राइट? तो अगर मुझे उसका एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिंग का मास इनटू उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर. सो दिस विल गिव मी द इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग. ओके, इट इज वेरी इजी. ओके, और सिमिलरली ये एक रिंग है. ओके, अगर मैं ये रिंग को, रिंग मतलब क्या, नॉर्मल जो हम रिंग पहनते हैं, बट अगर मैं डिस्क को, जैसे हमारे पास सीडी होता है, पुराने जमाने में जो सीडी था, राइट? सो दैट वी कॉल्ड एज अ डिस्क, राइट? सो वो डिस्क में क्या होता है, ये पूरा पार्ट क्या होता है, मास से भरा हुआ होता है. ओके, सो इन दैट केस सेंटर इज नथिंग बट, मैं अगेन वो केस में भी मेरा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर में ही होगा. ओके, बट माई मास इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द डिस्क. तो अभी वो केस में कैसे फाइंड आउट करें वो हम देखते हैं. बट फॉर रिंग the moment of inertia is calculated like this, which is mr square. Okay, remember this because ये MCQs में आता है. Okay, let's move to the next. See, now you can see here the disk. Okay, so disk is a two-dimensional circular object, negligible thickness. It is said to be uniform. Its mass per unit area and its composition is same throughout. मतलब एक ऐसा मैंने डिस्क लिया है, okay, जिसका thickness क्या है, almost negligible है. Okay, and it is said to be uniform if it is mass per unit area and its composition is the same throughout. कंपोजिशन का मतलब क्या, इसमें कहीं भी आपको एक एक चीज ज्यादा एक चीज कम नहीं मिलेगी. एवरीवेयर इट विल बी अ कांस्टेंट. इसको हम बोलेंगे द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट. नाउ
the next thing which I want to find out is nothing but the this called as the surface density. Okay, so what do you mean by surface density? Surface density is nothing but the distributed mass in a given area, we call it as a surface density. मतलब अगर मुझे छोटे से पोर्शन के लिए फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना मास है, तो मुझे ये एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सरफेस डेंसिटी के साथ. ओके, सो कोई डिस्क थिक होती है, कोई डिस्क कम होती है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एज वेल, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, हमेशा उसका मास और उसका डेंसिटी होगा. सो डेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू मास अपॉन एरिया, वेयर एज मास डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड एज द सरफेस डेंसिटी. ओके, सो सरफेस डेंसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एज ऑफ नाउ द मास ऑफ द डिस्क इज नथिंग बट लेट्स से कैपिटल एम. Okay, and area of the disk is nothing but again it's a circular, then pi r square, where r is nothing but the radius of my given disk. So मुझे यहाँ से क्या मिला, surface density मिल गया. Now with help of this surface density, what I have to do, I have to find out the equation for moment of inertia for a uniform disk. Okay, so वो कैसे है, let's see. As it's a uniform circular object, it can be considered as a consisting of number of concentric rings of radii increasing from 0 to r. देखो, अभी पूरा अगर मुझे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड आउट करना है, राइट, सो डायरेक्टली मैं यहाँ से नहीं फाइंड आउट कर सकता, बिकॉज मेरा जो मास है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. सो इट इज नॉट इजी फॉर मी टू फाइंड आउट, जैसे हमने इजीली फाइंड आउट किया था रिंग के लिए, करेक्ट. तो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा नॉर्मली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्क इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. ओके, रिंग्स का मतलब ये एक रिंग है. ओके, सिमिलरली इसके बीच में और एक रिंग होगी, इसके बीच में और एक रिंग होगी. सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स मिला के मेरा फाइनली क्या बना है, ये पर्टिकुलर डिस्क बना है. ओके, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि दिस पर्टिकुलर डिस्क इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. ओके, मैंने इसको रिंग्स में कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज मुझे मेरे पास रिंग्स का ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन या फॉर्मूला है. तो वही इक्वेशन या फॉर्मूला मैं इसमें अगर डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. सो पहले मैं क्या करूंगा, एक छोटे से रिंग के लिए फाइंड आउट करूंगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. तो फिर अगर मुझे जैसे ही मुझे उसका मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर r तक जितने भी रिंग्स है सबका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर दूंगा. मतलब मुझे इनडायरेक्टली क्या मिलेगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माय यूनिफॉर्म डिस्क. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सो इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर डिस्क को दे हैव कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल स्मॉल concentric rings. So therefore the area of this ring A is equal to 2 pi r into dr. Okay, so obviously जो रिंग है उसका भी क्या होगा, रेडियस होगा, या उसका भी क्या होगा, अपना खुद का दिस आर डिस्टेंस होगा. ओके, और उसका खुद का भी क्या होगा, एक एरिया होगा. सो वो एरिया को मैंने फाइंड आउट कर दिया, दिस. सो देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस रिंग इज नथिंग बट 2 pi r into dr. ओके, सो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे जो dr है विच इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग. ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एलिमेंट पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्वियसली उसका थिकनेस भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. So therefore 2 pi r is nothing but circumference into the dr. Okay, तो मुझे क्या मिला, मेरा पूरा एरिया ऑफ माय रिंग मिल गया. Now next is nothing but I want to find out कि डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग. तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिंग का एज ऑफ नाउ मैंने कंसिडर किया है मास इज नथिंग बट dm. So let's say assume the mass is nothing but of this ring is dm, the distance is r and the thickness is dr. So therefore the surface density will be equal to mass upon area. So area of this ring is given by this and mass is given by this. So therefore मुझे यहाँ से dm का इक्वेशन मिलेगा. dm will be equal to 2 pi sigma into r into dr. As it is a ring, this entire mass is at distance r from the axis of rotation. Okay, so this is the ring. तो इसके लिए ये ring का जैसे हमने देखा था, the mass is at r distance from axis of rotation. So ये पूरे mass क्या है, r distance axis of rotation पर है. So therefore moment of inertia of this small ring can be given by mass into
द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो अभी यहाँ पे ये रिंग का मास कितना है मैंने कंसिडर किया है dm और उसका डिस्टेंस कितना है r. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी माय इक्वेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. तो मुझे यहाँ से एक रिंग का इक्वेशन मिल गया. ओके अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि सेंटर से लेकर जहाँ पे रेडियस उसका कैपिटल आर हो रहा है, देर आर n नंबर ऑफ रिंग्स. तो अगर मैं एक के लिए फाइंड आउट कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली आई कैन फाइंड इट आउट फॉर ऑल द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. उसके लिए मुझे क्या लगेगा, आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. ओके सो आई होप आपने सीखा होगा मैथ्स में कि इफ आई वांट टू ऐड सम सिमिलर क्वांटिटीज, ओके, जिसका मैं मेरे फिंगर्स पे उसको काउंट नहीं कर सकता, तो वो सारे चीजों को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं. ओके सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एडिशन एंड इंटीग्रेशन. दोनों का पर्पस सेम ही होता है, सम अप करना या एक साथ वैल्यू निकालना. बट एडिशन में हम वही को उसको ही ऐड करते हैं जो काउंटेबल होता है अपने हाथ पर. बट इंटीग्रेशन में वी डू इंटीग्रेशन ऑफ नॉन काउंटेबल एंटिटीज. जैसे आप देख सकते हो कि ये एरिया को, सॉरी ये छोटे से एरिया को मैंने फाइंड आउट कर दिया, बट देर आर n नंबर ऑफ रिंग्स आर देयर. सो आई कांट डू द इंटीग्रेशन. Okay, I can't do the summation of it because there are infinite concentric rings. Okay, तो उसके लिए मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेशन पिक्चर में आया. Okay, where I can add any number of arbitrary, जिसका कोई शेप नहीं है, which are non countable things, उनको हम इंटीग्रेट करेंगे. So the moment of inertia of a disk can now be obtained by integrating IR, मतलब moment of inertia of ring from R0 to R, because R0 to R पे there are many there are many rings, right? So ये सारे rings का जो radius होगा वो vary करेगा between 0 to R. तो by help of integration formula I will be equal to the limit from 0 to R into IR. So IR का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला है which is dm into R square. Therefore integration from 0 to R, I will take dm from here. Okay, this is the equation number 1. Okay, and this is the equation number 2. Okay, so 2 का इक्वेशन मैंने यहाँ पे डाला और 1 का इक्वेशन मैंने यहाँ पे डाला. तो I will get equation find something like this. So integration from 0 to R, 2 pi sigma R into dr into R square. Therefore 2 pi sigma in bracket 0 to R, R cube into dr. So simply this is the integration formula. R square का हमेशा क्या होता है, R cube होता है. ओके इनटू dr. तो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या मिला, सॉरी यहाँ पे r इंटू आर का r क्यूब हुआ, ठीक है, एंड मेरे को dr मिला. एंड ये 2 पाई सिग्मा इज द कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट आउट. ओके देन उसके बाद क्या हुआ, अभी I विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, आई हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से हमेशा क्या होता है, R3. सो हमेशा मुझे इंटीग्रेशन का अगर किसी को करना है तो मुझे उसके जो रेस टू है वहां पे मुझे 1 ऐड करना पड़ता है और सेम एंटिटी मुझे नीचे लेके आना पड़ता है. देयरफॉर R3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4. और मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी यूज किया विच इज द लिमिट 0 टू R. ओके सो पहले मैं R यूज करूंगा फिर -0 कर दूंगा. सो R रेस टू 0 मेरा वो, सॉरी R मेरा 0 रेस टू 3 इज माई 0 ओनली. तो मुझे क्या मिला, R रेस टू 4. सो देयरफॉर R रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4. सो ये 2 एंड ये कैंसिल हो गया. तो मुझे क्या मिला फाइनली, ओ मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने वैसे ही रखा. अगर उसको कैंसिल भी करता हूँ तो फाइनली मुझे ये इक्वेशन मिलेगा. ओके सो दे हैव नॉट कैंसल्ड, सो दे हैव पुट द इक्वेशन लाइक दिस ओनली. ओके बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि मैंने सिग्मा का वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे, I have converted in terms of mass. So sigma is equal to mass divided by the total mass divided by its total area. But यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं. तो obviously the total mass of the disk divided by total area of the disk, which is m divided by pi r square into r4 divided by 4. Then मैंने अगर cancel out किया तो मुझे half mr square मिला. Okay, so for disk as well, the equation or moment of inertia is also same as that of uniform ring, which is half mr square.
ओके, सो अगेन मैं बताता हूँ यहाँ पे व्हाट वी हैव डन। मेरे पास एक कॉन्सेंट्रिक डिस्क था। ओके, वो कॉन्सेंट्रिक डिस्क को मैंने क्या किया, स्मॉल स्मॉल सर्कुलर रिंग्स में कन्वर्ट किया, बिकॉज मुझे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। अगर मुझे एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता चल गया, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर, वेर आर इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू आर, तो मैं सबका क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, सो दैट आई विल गेट द एंटायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई डिस्क. Okay, so same I have done it over here, but the only thing is you have to take help of surface density. Okay, because density is that particular entity which is common for ring as well and common for disk as well, because density हमेशा same होता है. Okay, so therefore मैंने क्या किया, पहले छोटे छोटे रिंग्स में उसको कन्वर्ट किया. एक रिंग का मैंने फॉर्मूला निकाला, डिस्टेंस निकाला. ओके, देन उसका मैंने सरफेस डेंसिटी निकाला एज वेल एज उसका मास भी निकाला. ओके, एंड विथ हेल्प ऑफ दैट आई फाउंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिंग. देन वही फिर रिंग को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, सो दैट मुझे पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सके. जैसे ही मेरा ये फॉर्म में इक्वेशन आया, मैंने सिग्मा को अगेन कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ मास. सो यहाँ पे मैंने सिग्मा का डाल दिया डिस्क का मास. सो देयरफॉर डिस्क का जो मास है विच इज कैपिटल एम डिवाइडेड बाय area of the disk, which is this. So finally I got this equation half mr square. Okay, so I hope you have understood this. So this is the moment of inertia of circular disk. Now there is a very good concept. Okay, एक concept है जिसको हम बोलते हैं radius of gyration, radius of gyration. It is up to you आप उसको कैसे pronounce करते हो, ठीक है, but it has to be written in gyration. Okay, so radius of gyration I used to tell. Okay, so ये radius of gyration है क्या, देखो सिंपल है. ये जो एक्सिस होता है, ओके, एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस. ओके, एंड ये जो डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल मासेस, ओके, जहां से हम एक्चुअल में फाइंड आउट करते हैं, और आई कैन सी द डिस्टेंस जो एक्चुअली होता है, राइट, फ्रॉम द गिवन मास, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन. ओके, सो जैसे उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर ये मेरा एक्सिस अगर समवॉट अराउंड यहाँ पे होता, ओके, सॉरी, ओके, सो इफ माय एक्सिस इज लेट्स से समवॉट अराउंड हियर, सो क्या होता ये केस में, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ऐसे होता. ओके, सो ये पॉइंट से जो भी डिस्टेंस लिया है, ये मेरा क्या होता है, एक्सिस ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन. सो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग बट दैट डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ जायरेशन, वेयर एज माई मास इज गोना बी कॉन्स्टेंट. सो उन्होंने क्या दिया, इफ वी एक्सप्रेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वी विल गेट I is equal to mk square. Therefore m is nothing but my mass of that object. It means that the mass of the object is effectively at a distance k from the given axis of rotation. In this case, k is defined as the radius of gyration of the object about the given axis of rotation. Therefore, the larger the value of k, farther the mass of the axis. Okay, so इसका मतलब कि जितना ये ज्यादा रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, उतना वो मास क्या होगा, दूर होगा उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, so this is a simple axis of or radius of gyration is simple. It is nothing but the actual distance from the mass, जिसके बेसिस से मेरा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, डिपेंड करता है. ओके, या, so let's move to the next. Yeah, now this is very important and most favorite for board, examiners. There are two theorems. First is theorem of parallel axis and second is theorem of perpendicular axis. Okay, so अब ये theorem of parallel axis या theorem of perpendicular axis, एक्चुअल में इसका यूज क्या है वो पहले जानना है. ठीक है, कोई भी चीज का पहले यूज जान लो, क्या यूज होने वाला है, उसके बाद उसको समझो कि वो
कैसे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज अ लेटर पार्ट। सिंपली उन्होंने क्या दिया हुआ, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसके पहले हमने जो भी देखा था वो सारे थे जिनका डेफिनेट शेप मुझे पता है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग कि जिसका भी हमने एज ऑफ नाउ फाइंड आउट किए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रिंग हो गया या डिस्क हो गया, ये सबके पास डेफिनेट रेडियस थी, ये सबके पास डेफिनेट उसका एरिया था, सबके पास डेफिनेट उसका डेंसिटी था, सारी चीजें डेफिनेट थी। तो मुझे इजी हो गया उसको फाइंड आउट करने के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट जब भी एक आर्बिट्रेरी बॉडी आती है, मतलब जिसका शेप मुझे अननोन है, पता ही नहीं क्या है, राइट? सो व्हेनेवर देयर इज अ आर्बिट्रेरी बॉडी केम इनटू द पिक्चर, जिसका मुझे ना रेडियस पता है, जिसका ना मुझे एरिया पता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट। तो वो केस में हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करें? So that's why our scientists came up with the two theorems. One is parallel axis theorem, second is perpendicular axis theorem. Okay, so let's see कि ये parallel axis theorem and perpendicular axis theorem है क्या. In order to apply this theorem to any object, we need two axes parallel to each other. मतलब ये particular जो theorem है, अगर मुझे उसको लगाना है, उसको use करना है, so I need two axes. Okay, two axes parallel to each other, and उसमें का one axis has to pass from center of mass. Okay, इसके पहले मैंने आपको बोला था व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास. सो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा मास होता है जहाँ पे उसके सेंटर में सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है. ओके, मतलब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आप ये पॉइंट से अगर आप उसको टच करके और उसको होल्ड करें तो वो बैलेंस रहेगा. Okay, hope you have understood this. So this is called as the center of mass. अभी ये center of mass से एक मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जाना चाहिए. ओके, मेरा मतलब मेरा एक एक्सिस जाना चाहिए और दूसरा जो एक्सिस है वो सेम पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर एक्सिस ही होगा, बट आई कैन टेक इट एट एनी पॉइंट. ओके, सो एज ऑफ नाउ मैंने एक ओ पॉइंट लिया है जहां से ये सेकेंड वाला एक्सिस में पास कर रहा हूँ, विच इज पैरेलल टू दिस ACB एक्सिस. Okay, so now there are two axes. First is MOP axis, which is parallel to ACB axis, in which ACB axis is passing through the center of mass, whereas MOP axis is passing through the point O. Okay, ये point O पूरे बॉडी पे कहीं पे भी मैंने लिया हुआ है. Let's say at any random point I have taken this. So this is a random point and this is center of mass. Okay, but ये point ऐसे लिया है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, बीच का h होगा. ओके, सो आई हैव कैलकुलेटेड इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, h है. ओके, नाउ d इज द पॉइंट. ओके, वी कॉल्ड इट एज अ पॉइंट ऑफ मास. अब मुझे क्या करना है, एट पॉइंट d पे मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पे मेरा एक मास है, मतलब छोटा सा, ये पूरे बॉडी का मैंने एक पॉइंट मास लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट वाला मास यहाँ पे लिया. ओके, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करने की इंपॉर्टेंट है, इज नथिंग बट दिस रेडियस. सो दिस इज r1 आई कैन से, and this is r2. Okay, so these are two important radius which are very much important. Okay, so first I have r1, second I have r2. so ये distance कितना है, OD, दूसरा है क्या है, CD. Okay, so this is a distance OD and this is a distance CD. as well as मैं क्या कर रहा हूँ, at the same time D point से ये जो पैरेलल और सिमेट्रिक एक्सिस है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ और वही लाइन पे मैं अलाउ कर रहा हूँ ये डी को परपेंडिकुलर क्रिएट करने के लिए. तो जैसे उसने परपेंडिकुलर क्रिएट किया, इट मेड दिस पर्टिकुलर एक्सिस एट एन पॉइंट. ओके, सो मुझे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया, दैट्स इट. तो क्यों लगाया, क्या लगाया, वो हम देखते हैं क्यों लगाया वो. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट is nothing but to understand this parallel theorem. Okay, और उसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसको कैसे यूज करें. तो सबसे पहले what I will do, I will find out the moment of inertia of the object about its axis which is ACB. तो यहाँ पे क्या है, ACB.
is nothing but AC will be equal to integration of dc square into dm. So dm is nothing but, as I told you, point mass which is at d. So यहाँ से let's say मेरा क्या है dm. Okay, so this is nothing but my point dm. Okay, so the ACB is nothing but IC is equal to integration of DC square into DM. तो यहाँ पे मेरा जो DM ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस और उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस ACB कितना है, लेट्स से CD है, so ये और DC है, तो मैंने उसको डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास. तो यहाँ पे मुझे एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट C मिल गया. एट द सेम टाइम मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट क्या निकालना है, O निकालना है, बट मेरा डिस्टेंस क्या है ये टाइम पे OD और DO. तो मैंने क्या किया, ऑल्सो अबाउट द एक्सिस MOP मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IO वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डिस्टेंस विच इज DO स्क्वायर इनटू DM. ओके, होप यू हैव नो remember this. I will be equal to mk square where k is the radius of gyration. At the same time here अगर मुझे ये एक्सिस के अराउंड मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो ये जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या है, मेरा पॉइंट एक्चुअल में पॉइंट ऑफ मास जहाँ पे एक्चुअल मास है और उसका डिस्टेंस ये है. ओके, सो यहाँ पे डीसी स्क्वायर इंटू उसका पॉइंट मास, और यहाँ पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहाँ पे डीओ स्क्वायर इंटू पॉइंट मास. तो मुझे यहाँ से क्या मिला, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ACB, sorry, for axis of rotation ACB, and moment of inertia for object MOP. Okay, so I'll just keep this two equations aside because हम उसको use करने वाले हैं. ठीक है, चलो let's take this equation and let's find it out. So as of now मैंने क्या किया, IO ये जो मेरा है इसको मैंने इंटीग्रेट किया बिकॉज ऑलरेडी इंटीग्रेशन में है, विच इज DO स्क्वायर इंटू DM. अभी ये DO स्क्वायर इंटू क्या हो गया मेरा, इंटू DM. तो DM को मैंने वैसे ही रखा, बट ये जो DO है D एंड O, दिस इज द यूजिंग द पाइथागोरस थियरम. ओके, ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये मेरा क्या है, साइड, और ये मेरा साइड. सो ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर विल बी इक्वल टू DO स्क्वायर. तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको पाइथागोरस थियरम से ऐसे लिख दिया. ओके, so therefore dn square plus no square. So complete dn square this plus no square this. Okay, which is nothing but equal to this. So यहाँ से मैंने क्या किया, उनको डाल दिया. अभी I know that this dn this हाँ, so again I have this no को मैं क्या लिखूंगा, again I will break this no in terms of my this entire NO. I can break it like OC and CN. देखो अगेन मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया. एक है मेरा OC, दूसरा है मेरा NC. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, NO के जगह पे मैंने ब्रेक डाउन डाल दिया. फर्स्ट इज NC एंड सेकेंड इज CO, और मैंने उसका स्क्वायर जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर उसको मैंने सॉल्व कर दिया. तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर इन ब्रैकेट 2NC CO प्लस CO स्क्वायर. अभी CO तो मुझे पता है विच इज नथिंग बट H. ओके, CO मुझे क्या है, मेरा H है, तो मैं CO के जगह पे क्या डाल दूंगा, H का वैल्यू डाल दूंगा. देखो यहाँ पे मैंने H का वैल्यू डाल दिया. NC का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैंने NC को वैसे ही रखा. बट यहाँ पे आप देख सकते हो DN और NC को मैंने अचानक से DC लिख दिया. क्यों, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी दैट दिस साइड plus this side is equal to, again using Pythagoras theorem, I can equate this side. Okay, so dn square plus nc square is equal to dc square. So therefore ये दोनों को मैंने क्या लिख दिया, simply यहाँ पे dc square लिख दिया. Hope you remember this, right? So using that I can easily find out this. Okay, so my final equation came with this जिसमें dc square है plus 2NC इंटू H है प्लस H स्क्वायर है. अब मैं सारों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करूंगा. सो अगर मैं सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा,
dc स्क्वायर इंटू dm, मतलब पहले मैंने इसको किया, देन मैंने इसको किया और फिर मैंने देन इसको किया, ठीक है। सो dc स्क्वायर इंटू dm प्लस 2h, बिकॉज 2h इज कॉमन, so therefore nc into dm into h square whereas it is common and dm, okay। तो यहां से मुझे क्या मिला, dc square into dm, so dc square into dm तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया which is nothing but this, okay। so this is nothing but my ic, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ic, whereas इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब स्मॉल यूनिट मास को अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे पूरे रिजिड बॉडी का क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट एज अ कैपिटल M, ओके। सो मुझे यहाँ पे पूरा क्या मास मिला, m इज माई टोटल मास, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल मास विल बी इंटीग्रेटेड विद कैपिटल M, ओके। सो मुझे यहाँ पे पूरा मिल गया, बट नाउ आई हैव टू चेक व्हाट टू डू विद दिस व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ nc इनटू dm। सो देखो यहाँ पे अगर मैं उसको चेक करना चाहूँ, मतलब इंटीग्रेट करना चाहूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा dm d पॉइंट पे एक्चुअल मेरा स्मॉल मास है जिसको मैं लिख रहा हूँ dm, ओके, बट देर इज नो मास एट पॉइंट n। सो अगर मेरे पॉइंट n पे इफ देर इज नो मास, इसका मतलब जो dm का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज देर इज नो मास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। सो nc जो डिस्टेंस दे रहा है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे देर इज नो मास, इसका मतलब nc into 0 is nothing but equal to 0. So integration of 0 is again 0. So there is no mass of it. Okay. So ये याद रखना, this is a tricky. यहाँ पे dc था तो dc का मैं dc पे जो डिस्टेंस था, यस यहाँ पे dm का मास है तो उसको मैंने ऐसे लिखा, एज वेल एज मैंने यहाँ पे dm को भी, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे dm का मतलब एक्चुअल में यहाँ पे मैंने अगर ये पर्टिकुलर मास को इंटीग्रेट किया तो मुझे m मिलेगा, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटीग्रेशन ऑफ nc इनटू dm, तो वो केस में मुझे कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज एट एनसी पॉइंट मतलब एट एन पॉइंट देर इज नो मास, इट इज जस्ट अ पॉइंट जहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लिया था, सो देयरफॉर डीएम इज इक्वल टू 0, ओके। सो देयरफॉर देर इज नो मास, तो ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो मेरा बचा कौन सा टर्म, आईसी बचा, बिकॉज ये टर्म यहाँ पे मुझे आईसी मिलेगा और यहाँ पे मुझे एम मिलेगा। सो लेट्स सी इसका कैसे चेंज हुआ वो, okay। Now you can see that nc is the distance of a point from the center of mass at any mass distribution is symmetric about the center of mass, मतलब पॉइंट पे कभी भी मास होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली वहां पे हमेशा ये dm क्या रहेगा, 0 रहेगा, therefore इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर थिंग इज 0, ओके। therefore मुझे जो फाइनल आउटपुट मिला which is nothing but the center of mass, sorry, the moment of inertia at any arbitrary point which is having a parallel axis with the axis which is passing through the center of mass will be given by this equation, okay। so यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दिया है, it states that the moment of inertia IO of an object about any axis, देखो this any is important, okay। so this any axis is the sum of its moment of inertia about its axis parallel to the given axis, okay। so sum दिया है, देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, मतलब क्या, मुझे डेफिनेशन में सम यूज करना पड़ेगा। तो देर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैविंग h डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ओके। तो यही चीज को अच्छे से अगर मुझे लिखना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO of an object about any axis is sum of moment of inertia of IC about its axis parallel to the given axis and passing through the center of mass, and मतलब यहाँ से ये वाला टर्म मुझे डिफाइन करना है, the product of mass and the object, the product of mass of object and the square the distance between two axes which is mx square, okay। तो पहले मैंने ये डिफाइन किया IC और फिर मैंने ये रिमेनिंग वाला डिफाइन किया, ओके। एंड ये दोनों का समेशन मिलेगा मुझे इसका इक्वेशन। Again, I am stating this. The moment of inertia IO of an object about any axis is sum of, sum मतलब ये addition आ गया, sum of moment of inertia IC about an axis parallel to its given axis and passing through the center of mass and the product of mass of object and the square of the distance between them,
their two axes, okay, which is mh square. So in short, IO will be equal to IC plus mh square. बस इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए दिक्कत जाएगी, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी द सेंटेंस इज वेरी ह्यूज, ओके, बिकॉज आईसी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, आईसी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस, ये पहला कंडीशन हुआ. सेकंड कंडीशन, इट हैज टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेकंड कंडीशन. अगर ये दो चीजें ये एक्सिस फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो मिलेगा आईसी, एज वेल एज प्लस मतलब एंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस व्हिच इज h, okay, square of the distance between two objects which is h square. Okay, hope you have understood this. So this is nothing but my theorem of parallel axis. Okay, understood this? Just give me yes or no, quick. Okay, perfect. Okay, perfect. Okay, let's move to the next. So this is what I have did simply as I told you कि पैरेलल एक्सिस हमेशा हमें यूज करना है जहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका जो बॉडी रहेगा वो आर्बिट्ररी शेप होगा, डेफिनेट शेप नहीं है, बिकॉज डेफिनेट शेप के लिए मुझे इंटीग्रेशन या किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है, कांस्टेंट है उसके लिए, ठीक है. बट जैसे ये आर्बिट्ररी शेप आ जाता है, देन आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ दिस थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जहाँ पे ये मेरा एमओपी इज द पैरेलल एट एनी पॉइंट, जैसे मैंने ओ पॉइंट लिया, एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास हैविंग द डिस्टेंस h, एंड ए सी बी मेरा ये एक्सिस है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही जाएगा. आप सोच रहे हो कि ये अगर एसीपी कहीं पे यहाँ पे लूँ और दोनों के बीच पे फाइंड आउट करूँ तो नहीं मिलेगा आपका आउटपुट. Okay, so this is the mandatory things for that in order to get the parallel axis. Now next is the perpendicular axis. Perpendicular axis again a simple thing, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है. इसके पहले हमने क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट था वो हमने ट्राई किया था वर्टिकली मूव करने का. ओके, आई विल शो यू व्हाट डू मीन बाय वर्टिकली मूव करना. देखो यहाँ पे जो एक्सिस था उसको मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ, उसको मैं फ्लैप की तरह रोटेट कर रहा हूँ. ओके, मेरा जो फ्लैप है वो ऐसे रोटेट हो रहा है. ओके, बट ये जो मेरा सेकंड वाला है, ओके, ये मेरा कैसे मूव करेगा, दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, दूसरा ये डायरेक्शन, ये ऐसे मूव करेगा, बिकॉज ये z एक्सिस के अकॉर्डिंग ये मेरा y एक्सिस और एक्सिस क्या करेगा, घूमेगा, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा. एट द सेम टाइम क्या होगा, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y एक्सिस एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ z एक्सिस पे निकालना होगा, तभी मुझे फाइनली मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माय z एक्सिस. सो x और y का अगर मैंने निकाल दिया तो मुझे z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, और यही हमें देखना है और यही हमें प्रूफ करना है. ठीक है. सो अगेन देयर इज अ ऑब्जेक्ट, arbitrary shape, there is no fixed I can say of shape to it, it is a rigid body, it will not change its shape, okay, after application of force. Now next what I have to find, this theorem relates the moment of inertia of laminar object. laminar का मतलब ही होता है 2D, okay, एरियल, जो 2D में होता है उसको हम लोग laminar बोलते हैं. This theorem is the moment of inertia of laminar object about three mutually perpendicular concurrent axes. Okay, concurrent मतलब at this point all are meeting, तो इसको हम लोग बोलेंगे concurrent point, and the axes are called as a concurrent axis. Two of them in the plane of object and third is perpendicular to the object. ये जो z है वो है perpendicular to the object. Okay, और ये जो x and y है those are parallel to the object. Okay, because वो plane में है. plane में मतलब इसको अगर आप 3D में देखोगे ना तो ये पर्टिकुलर x एक्सिस एंड y एक्सिस एक्चुअल में उसके सरफेस पे लाई कर रहे हैं, और ये z एक्सिस 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है. ओके, इन दिस थियरम रिलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट three mutually perpendicular and concurrent axes, two of them in the plane of object and the third is perpendicular to the object. Okay, so now let's see
कि इसको हम कैसे डिफाइन करें, बिकॉज इसका भी फाइंड आउट करने का तरीका है। ओके, सो बट उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे हमने वहां पे डी लिया था, वैसे मैंने यहाँ पे पी लिया। सो लेट्स से पी इज नथिंग बट एनी पॉइंट। ओके, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, जहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा पॉइंट मास है। ओके, दिस पॉइंट मास इज अगेन एंटायर स्मॉल पॉइंट मास ऑफ दिस एंटायर मास। ओके, ये मेरा यहाँ पे छोटा सा क्या है, डीएम करके मैंने पॉइंट लिया। और वो पॉइंट क्या लिया मैंने, पॉइंट को नाम दिया पी। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पी is for x axis the distance is y, and for y axis the distance is x, as well as for the z axis the distance is nothing but this, जिसको मैंने नाम नहीं दिया है, जिसको मैं बोलूंगा OP। ओके, सो MP मुझे पता है विच इज y, एंड PN मुझे पता है विच इज x। सो y एक्सिस से मुझे डिस्टेंस पता है, x एक्सिस से मुझे डिस्टेंस पता है, बट z एक्सिस से मुझे डिस्टेंस नहीं पता, उसको मैं ले लूंगा OP। सो अभी ये तीनों चीजों से मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे एग्जैक्टली कि क्या करना है। चलो नेक्स्ट, yes, now you can find, consider a mass element dm located at point p। okay, as I told you कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट मास ले लिया एट पॉइंट p, whereas pm ये जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने बोला उसको मैं y लिखूंगा। ओके, और ये जो pn है उसको मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन these are perpendiculars drawn from the point p। so यहाँ पे ये जो डिस्टेंस निकाला है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। m from x and y and z axis will then by having this equations, मतलब उनका अगर मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट m, हाँ ये m का अगर मुझे फाइंड आउट करना है फ्रॉम द डिस्टेंस, तो मुझे क्या मिलेगा, x y z axis will be given like this, which is x, sorry y x and root of y square plus x square। so ये जो सेंटर वाला है ना, उसका मैं कैसे लिख सकता हूँ, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये जो पॉइंट मास है उसको अगर मुझे लिखना होगा अच्छे फॉर्म में, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, उसका सारे एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है y, y एक्सिस से डिस्टेंस है x, और z एक्सिस से डिस्टेंस है रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो आई कैन इजिली फाइंड आउट इट्स वैल्यू। ओके, so this is the right angle triangle। now if ix मतलब moment of inertia about x axis, moment of inertia about y axis, and moment of inertia about z axis, okay, are the respective moment of inertia of the body about x y z axis। therefore we can write, मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, this ix will be equal to, मतलब ये जो ix है, अगर मैंने ये पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट पी फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो इट इज वेरी इजी फॉर मी। क्यों? बिकॉज मुझे डिस्टेंस पता है, ये एक्स एक्सिस से ये पी का डिस्टेंस कितना है, वाई है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे आई एक्स विल बी इक्वल टू वाई इंटू इसका जो मास है विच इज स्मॉल डी एम, सो यहाँ पे टी एम आ जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे मुझे इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन, आई वाई विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से, एक्स डिस्टेंस है, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू मास कितना है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का, डीएम। सो मैंने यहाँ पे डीएम लिख दिया। एट द सेम टाइम अगर मुझे यहाँ पे एक्जेड होना चाहिए, सो एक्जेड विल बी इक्वल टू, सॉरी या, सो यहाँ पे एक्जेड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, मतलब जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है पॉइंट डी, पॉइंट एम से रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पॉइंट मेरा क्या है डीएम। तो यहाँ पे इट हैज टू बी जेड। So Iz will be equal to integration of y square plus x square into dm। So therefore मैं क्या करूंगा, dm को मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों को अलग अलग लिखूंगा। Therefore Iz will be equal to integration of y square into dm plus integration of s square into dm। Therefore मुझे क्या मिला, ix into iy मिला। Okay, so ix into iy is actually the individual moment of inertia of this and individual moment of inertia of this। so इसका मतलब ये होता है, for in perpendicular axis
अगर मुझे तीसरे एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर हैविंग अ डिस्टेंस विद द रिजिड बॉडी, अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मुझे रिमेनिंग दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एड अप करना होगा, तो ही मुझे थर्ड वाला जो एक्सिस है उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा. So therefore, by definition, it states that the moment of inertia of laminar object about its axis perpendicular to its plane. देखो, ये आई जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, बिकॉज तभी वो जाके डिफाइंड होगा. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ laminar object about an axis z perpendicular to its plane is then ये equation, which is sum of the moment of inertia of mutually perpendicular axis, which is x and y, to in its plane, and all three axes r has to be a concurrent axis. तो जब आप ये सारी चीजें डिफाइन करोगे तभी ये मेरा पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. Again, I am stating this. The definition, it states that the moment of inertia Iz of laminar object about an axis z perpendicular to its plane is the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes, which is x and y, and its plane, all three axes being concurrent. ओके, इसका मतलब ही ये होता है कि मुझे पता चल गया कि अगर मुझे Iz के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो मुझे सिंपली x एंड y जो ऑलरेडी कॉन्करेंट है, एंड वहां पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने मिल गया, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एट पॉइंट P जो उनके प्लेन में ही है, जो उनके 2D में ही है, तो वहां से मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा. और अगर मुझे मास पता है विच इज हैविंग वैल्यू dm, देन आई कैन इजीली फाइंड आउट ix, आई कैन इजीली फाइंड आउट iy, एंड दोनों का अगर मैंने सम कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, द equation or the moment of inertia about third axis which is perpendicular to the plane. Okay, so this is called as the theorem of perpendicular axis. Okay, so this perpendicular axis usually used when there is a two object, sorry, when there is a 2D object came into the picture or laminar object came into the picture. Okay, and this parallel theorem comes when there is a only single plane. If there is no exactly 2D और 3D came into the picture, normally one plane से भी अगर solve मेरा हो रहा है purpose, then in that case parallel theorem I will use it. And in this case, when there is a 2D came into the picture, laminar object came into the picture, so in that case अगर मुझे उसका moment of inertia perpendicular axis का निकालना है, which is z, so in that case I need to add the moment of inertia of individual axis which are in that particular plane. Okay, so तब मुझे क्या मिलेगा, मेरा perpendicular axis के theorem से मुझे Iz का मतलब moment of inertia of laminar object about an axis perpendicular to its plane मिलेगा. Okay, understood? Okay, thank you.